Hello everyone, this is CS Swapnil Mehta and I've been teaching you amendments which are applicable for May 2021 examination and specifically for intermediate CA intermediate students. Okay, if you have seen or if you have studied my first lecture, then you must be knowing about that in the first video I have taught you the amendments regarding residential status, then the amendments regarding salaries, and the only amendment, practically the only amendment which you can say is concerning the PGBP chapter. Okay, there are other amendments also which affect PGBP salary because of section 115 BAC, but that I have told you that I'll be covering it in a separate video when I'll be teaching you section 115 BAC. So sir, if you are you going to teach 115 BAC in this video? Still the answer is no, because I am not going for section 115 BAC. Sir, are you going to teach section 115 BAC? Yes, but in a separate video. Yes. In this video, I am discussing some other amendments. ये वीडियो में हम और amendments की बात कर रहे हैं जो बाकी के chapters को affect कर रहे हैं, like capital gains से capital gains, other sources, etc. And mind well, in this video, I am dealing with basically two big amendments. One which is in capital gain and another one is regarding dividend. और dividend का जो amendment है वो income from other sources, dividend का जो amendment है वो income from other sources और deduction from gross total income दोनों chapter में बहुत affect करेगा. तो friends ये वीडियो को ध्यान से देखिए. See, there are so many amendments and people are posting so many video lectures about it. बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज आपके एग्जामिनेशन पर्पज से जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है, जो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आपको जो अमेंडमेंट्स याद रखने हैं, वो मैं ये वीडियो लेक्चर की सीरीज में कवर कर रहा हूं. इज इट ओके फ्रेंड्स? यस. सो नाउ आई एम मूविंग अहेड विथ you can say now I am moving ahead with, you can say, amendment which concern the capital gain chapter. Okay, as a practitioner मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कैपिटल गेन चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट होगा, पर जब मैंने स्टडी किया ये पूरे अमेंडमेंट्स, तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, कैपिटल गेन चैप्टर में इस बार कुछ अच्छे अमेंडमेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए तो एप्लीकेबल जो हो सकते हैं, उनको एग्जामिनेशन में जो टेस्ट कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट्स तो बहुत एक बड़ा वाला अमेंडमेंट है. तो मैं सबसे पहले उसी से स्टार्ट करता हूँ, विच इज़ न्यू प्रोविजन फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 विच you have to apply in capital gain chapter. Okay, what is this? So एक लाइन ऐड हो गई है, वो लाइन है, in case of capital asset being land or building, the fair market value as on 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value as on 1/4/2001. You can see, अगर आप लेटेस्ट मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट की देखते हो तो आपको उसमें से ये लाइन देखने को मिलेगी. मैंने वो ये लाइन जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में दी है, वहीं से मैंने उसका रेफरेंस लिया है. अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगर वो एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली आपको एग्जाम तक याद ना रहे तो यू कैन अगेन रिवाइज दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो देखने की भी दोबारा झंझट नहीं करनी है, अगर आपको दोबारा वीडियो देखने का भी टाइम नहीं चाहिए, ओके, टाइम नहीं देना है, तो ओके, मैंने पूरा ट्यूटोरियल एक्सप्लेनेशन ये शीट में अपना डाल रखा है. तो अगर आपके पास ये पूरी मेरी शीट जो है, जो मैंने बना के रखी है, ये अमेंडमेंट की शीट सिर्फ अवेलेबल होगी, वो भी आप एक बार पढ़ लोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये अमेंडमेंट क्या है और क्या रेफर करता है. मैंने विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ये शीट में ये पूरा अमेंडमेंट कवर किया है. तो चलो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं. पहला अमेंडमेंट देखते हैं जो कैपिटल गेन में एप्लीकेबल है, जो मैंने आपको बताया, वो जो लाइन है, यस, उसी के रिगार्डिंग. तो अभी हमको पता है कि अगर हम कोई एसेट एक्वायर करते हैं बिफोर 1/4/2001, इफ वी एक्वायर एनी कैपिटल एसेट बिफोर 1/4/2001, then we know we have an option that we can take, assessee has an option that assessee can take fair market value as on 1/4/2001, fair market value as on 1/4/2001 as the cost of acquisition of that asset.
तो हम जनरली क्या करते हैं, हमको ये चीज़ पता ही है, हम कोई एसेट ऐसी है कि जो 1/4/2001 से पहले एक्वायर की है, लाइक मान लो कोई एसेट जो है वो 1991 में एक्वायर कोई एसएससी ने की है, 1991 में कोई एसएससी ने एक्वायर की है, तो हम देखते हैं कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फिर हम उसको कंपेयर करते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ऑब्वियसली एसएससी को जिसमें बेनिफिट होता है वही हम ट्रीटमेंट सिलेक्ट करते हैं, तो हम जो है वो क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 उसकी अगर ज़्यादा हो तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो तो हम वो सिलेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं। यस, अभी फ्रेंड्स प्रैक्टिकली हो क्या रहा था कि लैंड और बिल्डिंग के केस में बहुत सारे एसएससी के जिन्होंने, देखो आप ये वाला अमेंडमेंट जो है वो एक अफेक्ट कर रहा है सिर्फ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग को ही अफेक्ट कर रहा है। ये जो अमेंडमेंट है वो लैंड और बिल्डिंग को ही अफेक्ट कर रहा है। क्या होता था पहले, बहुत सारे एसएससी, बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे, वो लोग इनकम टैक्स को एक तरीके से चीट करते थे। कैसे? वो लोग ऐसा करते थे कि उन्होंने अगर लैंड बिल्डिंग एक्वायर की है बिफोर 1/4/2001 तो उनके पास ये जो ऑप्शन रहता था, तो वो क्या करते थे, कोई वैल्यूअर वगैरह कोई लोग हो कि जो ऐसे एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ढूंढने का काम करते हैं, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू फाइंड करने का एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू फाइंड करने का काम करते हैं, ऐसे वैल्यूअर को थोड़े रुपए 2-3-4-5 हज़ार ज़्यादा दे देते थे और उनको बोल देते थे कि आप मेरी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 अपने रिपोर्ट में ज़्यादा दिखा दो, तो मुझे आगे जाके इनकम टैक्स में फायदा हो जाए और मुझे उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़े नहीं। ओके, ये लोग ऐसी ट्रीटमेंट करते थे, अपनी एसेट की बैकडेटेड वैल्यूएशन ज़्यादा करवा देते थे और रिपोर्ट ज़्यादा अमाउंट का लेके आ जाते थे। उससे होता था क्या कि उनको कैपिटल गेन भरना नहीं होता था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होता था। इसी कारण अप्लाइंग दिस लॉजिक गवर्नमेंट has come up with a very good amendment। गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी इस साल से आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है, आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू आप जो सिलेक्ट करते हो एज ऑन 1/4/2001, उसको आपको कंपेयर करना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिसको हम SDV अभी ऐसा बोलेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और आपकी जो फेयर मार्केट वैल्यू जो आप बता रहे हो हमें, वो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अब पहले जो एसएससी ऐसा करते थे कि गलत फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते थे, अब वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा फेयर मार्केट वैल्यू नहीं ले सकते। तो 1/4/2001 की वैल्यू अभी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए नहीं। आपको सवाल होता है सर अगर वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हो तो ठीक है, यू कैन टेक फेयर मार्केट वैल्यू एज इट इज। तो बात यह है कि आपको विच एवर इज लेस, ये दोनों में से है, वो पहले सिलेक्ट करना है, फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 वही आपको ले लेनी है एज अ फेयर मार्केट वैल्यू, नो, आपको ये दोनों में से विच एवर इज लेस वो सिलेक्शन करना है। तो अल्टीमेटली सर हमें ये बता दो कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऐसे केस में फाइंड करनी कैसे है। तो आपको ऐसे केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करनी है 2 स्टेप में। पहले फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों में से जो लेस आए वो अमाउंट सिलेक्ट करो, वो अमाउंट को आप कंपेयर करो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्चुअली में 1991 या 1992 में हुई होगी, वो अगर ओरिजिनल कॉस्ट से ये सिलेक्ट करी हुई वैल्यू ज़्यादा आती है तो ये वाली सिलेक्ट कर लो, पर ओरिजिनल कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है तो ओरिजिनल कॉस्ट सिलेक्ट कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आपको ये ऐसे मैंने जो ओरली समझा है वो समझ में नहीं आया तो मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया एक चार्ट बना के रखा है। तो आई एम शोइंग यू दैट चार्ट, यू कैन सी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर लैंड और बिल्डिंग एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001। कोई भी लैंड और बिल्डिंग आपने अगर एक्वायर किया है बिफोर 1/4/2001 तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, दैट आई एम शोइंग बाय वे ऑफ अ कर्सर। तो पहले आप कंपेयर करो, अपना स्टेप नंबर 1 रहेगा कंपेयर दिस टू सिलेक्ट, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे रहेगा, बॉटम से अब तरफ यहाँ पे आ रहे हैं, तो सॉरी
पहला अपना स्टेप नंबर 1 रहेगा कंपेयर दिस टू सिलेक्ट विच एवर इज लेस, दैट इज व्हाट, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इसमें से लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मैंने बोला ना सिलेक्ट विच एवर इज लेस, वो जाएगा ऊपर वहां पे, तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग उसको अभी कंपेयर करो, कंपेयर दिस टू एंड सिलेक्ट विच एवर इज हायर, व्हाट, किसके साथ, ओरिजिनल कॉस्ट के साथ। वो तो हम पहले ही करते थे, ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते थे, पर अभी जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ इतना है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर कर लो, फेयर मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंपेयर कर लो, उसमें से जो लेस है वो आपको सिलेक्ट करना है। बिकॉज ऊपर क्या बताया था मैंने, ऊपर मैंने आपको ऐसा बताया था कि जो लाइन लिखी है अमेंडमेंट की वो ऐसी है, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। ठीक है, और देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एक चीज लिखी है और मैंने ब्लू से ये हाईलाइट किया है, मतलब थोड़ा हाईलाइट करने की ट्राई की है एक लाइन, मैंने ऐसा लिखा है एज फ्रॉम AY 2021-22 ऑनवर्ड्स, मतलब AY 2021-22 ऑनवर्ड्स, फिर फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, AY 2021-22 ऑनवर्ड्स इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड और बिल्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होता है लैंड और बिल्डिंग को। वैसे भी यार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी एसेट की अवेलेबल होती है, आप कोई ज्वेलरी की या फिर अपने शेयर्स की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थोड़ी निकालने जाने वाले हो। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ अवेलेबल होती है किसकी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिर्फ अवेलेबल होती है लैंड और बिल्डिंग की। तो इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड और बिल्डिंग, तो उसी के लिए ये अमेंडमेंट है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी लैंड और बिल्डिंग की ही होती है। The assessee has to check that in case where stamp duty value of the said property as on 1/4/2001 is available, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी अवेलेबल भी होनी चाहिए। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो प्रॉपर्टी की अवेलेबल नहीं है तो फिर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो फिर वैसे पहले जैसे करते थे, फेयर मार्केट वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर आप सिलेक्ट कर लो। तो तब जब अवेलेबल है तब ये वाला चार्ट, मतलब द फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, और हम ये चार्ट की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये चार्ट अपनी बुक में कॉपी भी कर सकते हो, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, द ड्रीमेक्स स्टूडेंट्स विल गेट दिस PDF इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। और अगर किसी को अगर नहीं मिल रही अपने ग्रुप में से, तो वो मेरे पास सेपरेटली मुझे मैसेज करके मांग भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यस। अभी अपने को देखना है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। तो चलो, मैंने अलग अलग 4 सिचुएशन रखी है, तो अलग अलग 4 क्वेश्चन है अपने पास, और उसका एक बेसिक जो अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट में बेसिक चीजें जो है वो मैंने यहाँ लिखी है। सपोज मिस्टर ए हैज एक्वायर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ऑन 1/1/1991, तो मिस्टर ए ने अक्वायर कब की है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मिस्टर ए ने अक्वायर की है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी एज ऑन 1/1/1991। He transferred the capital asset as on 1/6/2020. He transferred the capital asset as on 1/6/2020, मतलब अपना रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो आपकी मई या नवंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। द आंसर इज यस। तो फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन फॉलोइंग डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, अपने को बोला है कि ये अलग अलग सिचुएशन में आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड कर लो। तो अपने को पहले बोला है कि उसने एसेट एक्वायर कब की थी, 1/1/1991। सो ये हो गई 1/4/2001 से पहले। यस, एसेट है कौन सी, कैपिटल एसेट है, वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस, मिस्टर ए हैज एक्वायर्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपको बोल रखा है, तो या वो लैंड होगी या बिल्डिंग होगी या लैंड इन बिल्डिंग होगी। यस, सो मिस्टर ए ने अक्वायर की थी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर 1/4/2001। तो अपने को पता है कि इस बार अपने को देखना है अमेंडमेंट जो आया है ये कैपिटल गेन में। तो देखो, चलो सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि सिचुएशन 1 में क्या हो रहा है। सिचुएशन 1 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन 1/1/1991 कितनी थी, तो वो थी 2,50,000। सिचुएशन 1 में आप देख सकते हो, सिचुएशन 1 में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 2,50,000। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितनी है, वो है 10 लाख रुपीस। ओके, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो अवेलेबल ही नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। ये अमेंडमेंट तभी ध्यान में लेना है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 एप्लीकेबल हो, अवेलेबल हो। यहाँ पे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर अमेंडमेंट के पहले जैसा करते थे वही करना होगा। आप कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर सिलेक्ट कर लो। तो देखो, मैंने आंसर वाला कॉलम बना के रखा है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू बी टेकन अमाउंट रुपीज वाला। जो लास्ट कॉलम है जो थोड़ा हाईलाइटेड है, उसमें मैंने बताया है ₹10 लाख, वो हुआ अपना आंसर। नंबर 2, उसमें देखो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो है 2,50,000,
फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 8 लाख रुपीस। तो अभी आया अमेंडमेंट पिक्चर में, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने आपको क्या बोला कि स्टेप 1 अपना क्या रहेगा, अपना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करो और विच एवर इज लेस सिलेक्ट करो। तो वो क्या हुआ 10 लाख और 8 लाख, विच एवर इज लेस हुआ 8 लाख। वो अमाउंट को कंपेयर करो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, उसमें से विच एवर इज हायर सिलेक्ट करो, तो आ गया 8 लाख। ये बता दिया मैंने। थंब रूल जैसा कुछ अपने चार्ट में आप जैसे ऐसे थंब रूल आप अप्लाई कर देते हो तो भी आपको वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने आपको समझा है, वो एज ए थंब रूल जैसा कुछ है, एज ए थंब रूल जैसा कुछ है कि अपने चार्ट में वैल्यूज रखो और आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेनी है, कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको लेनी है। ठीक है, ये देखो मतलब इसकी एप्लीकेशन अगर समझनी है तो एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यही है कि आपकी फेयर मार्केट वैल्यू इट शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो देखो फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अभी ज्यादा नहीं हो रही, 8 लाख ही है। ठीक है, चलो सिचुएशन 3 उसमें है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,50,000, फेयर मार्केट वैल्यू है 10 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 12,50,000। अभी फेयर मार्केट वैल्यू से भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी, नहीं तो आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ले लेनी है। आप सोचोगे कि सर ऊपर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली तो नीचे भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, नो, आपको कैपिटल गेन गिनने के लिए कंपेयर तो ये दो चीज को ही करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू। पर अमेंडमेंट ऐसा बता रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इसीलिए फ्रेंड्स, इसीलिए फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से यहाँ एक्सीड नहीं कर रही, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से यहाँ पे एक्सीड कर ही नहीं रही, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। तो आप अपनी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो किससे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। या फिर अगर ऐसे समझ में लॉजिक नहीं आए तो मैंने आपको चार्ट बना के दे ही रखा है। चार्ट में आप पहले किसको कंपेयर करोगे, स्टेप 1 अपना क्या है, स्टेप 1 आप कंपेयर करोगे एफएमवी और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को, दोनों में से विच एवर इज लेस क्या हुआ फेयर मार्केट वैल्यू, यस उसको कंपेयर करो किसके साथ, उसको कंपेयर करो, देखो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, यस उसको कंपेयर करो किसके साथ, ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, विच एवर इज हायर, वो बन जाता है क्या अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो चलो वो भी हो गया सिचुएशन 2 में। तो हम क्या करेंगे, किन दोनों को कंपेयर करेंगे, सिचुएशन 2 में हम कंपेयर करेंगे 10 लाख और 8 लाख, विच एवर इज लेस 8 लाख, और नहीं सॉरी सिचुएशन 3 में कंपेयर किसको करेंगे 10 लाख और 12,50,000 विच एवर इज लेस 10 लाख, और उसको कंपेयर करो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 2,50,000, तो आंसर आ गया 10 लाख, यस। और अभी सिचुएशन 4 में हम जा रहे हैं, सिचुएशन 4 में जा रहे हैं, तो वहाँ क्या हुआ, फेयर मार्केट वैल्यू वाज 1,25,000 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150, विच एवर इज लेस 1,25,000, बट ओरिजिनल कॉस्ट देखने जाओ तो वो तो ज्यादा है। तो फिर असेसी को बेनिफिट देने के लिए हम फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 142,001 वाला ऑप्शन लेंगे ही नहीं, हमको सिलेक्ट क्या कर लेना है, हमको सिलेक्ट कर लेना है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो हमारा बन जाएगा जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर मिस्टर ए, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर मिस्टर ए। यस, सो मिस्टर ए के लिए ऐसे गिनेंगे। ये था कैपिटल गेन का मेजर अमेंडमेंट। बाकी जो अमेंडमेंट्स है कैपिटल गेन में वो इतने कुछ ज़्यादा है नहीं, पर चलो देख लेते हैं फिर भी। एक है वो है अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। आपके लिए अगर आपने नवंबर 2020 में एग्जामिनेशन दी है तो आपने अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रखा होगा 289, बट अभी आप जब मई 2021 में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 301, मतलब आपको अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो 301 रख के, अगर असेसी ने प्रॉपर्टी जो है अपनी ट्रांसफर की है प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर, प्रीवियस ईयर 2020-21 के अंदर, तो आपको जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर उसका एप्लीकेबल करना है, मतलब कोई भी सम में अगर आपको प्रीवियस ईयर 2020-21 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चाहिए, सो दैट इज 301, दैट इज 301, वो मैंने लिख दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो है वो पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों में एप्लीकेबल होगा, पर ज्यादातर हम उसको पीजीबीपी के टाइम ध्यान में नहीं लेते, ये सेक्शन को हम ज्यादातर ध्यान में लेते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं कैपिटल गेन, इसलिए मैंने पीजीबीपी के साथ इसका अमेंडमेंट डिस्कस नहीं किया था। इस बार अभी मैं ये दोनों साथ में समझा रहा हूं। जैसे कि देखो, अगर कोई लैंड और बिल्डिंग हम ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल एसेट, तो आपको पता है सेक्शन 50C अप्लाई होती है, बट अगर हम लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं एज अ स्टॉक इन ट्रेड तो आपको पता है कि सेक्शन 43CA अप्लाई होती है, ठीक है। अगर ये सेक्शन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो मेरे पास मेरा कैपिटल गेन्स के पूरे वीडियो अवेलेबल है, पीजीबीपी के भी वीडियोस अवेलेबल है, जो मैंने नए प्रीवियस ईयर 2020-21 वाले, मतलब नए नवंबर 2021 के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो वो वीडियो आप मेरे पास से मांग सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, दैट यू कैन गेट
अभी मेरा जो काम है वो क्या है कि आपको मेन जो एक अमेंडमेंट है वो मुझे आपको बताना है। आप जानते हो कि जब हम लैंड और बिल्डिंग जैसी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, लैंड और बिल्डिंग जैसी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हैं, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, डेप्रिशिएबल हो या नॉट डेप्रिशिएबल हो, हमें उसको उसका सेल कंसिडरेशन कंपेयर करना होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। और हम ये देख लेते हैं कि भाई आपका सेल कंसिडरेशन वो उस टाइम की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत कम तो नहीं हो रहा ना। अगर वो बहुत कम है, एक लिमिट से ज़्यादा कम है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर या फिर डेट ऑफ अग्रीमेंट, वो अपने क्या बन जाती है, वो आपकी बन जाती है डीम्ड फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन। तो आप जब पढ़ रहे थे असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, मतलब जो नवंबर 2020 में एग्जाम दिए वो बच्चे, वो लोगों ने पढ़ा होगा ओल्ड प्रोविजन, जिसमें कुछ ऐसा था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड करती है 105% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो वो ही बस अब चेंज होके हो गया है एक्सीड 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। बस इतना सा अमेंडमेंट है। पहले आप 5% ऐड करते थे अपने एक्चुअल सेल कंसिडरेशन में, अपने सेल कंसिडरेशन एज पर अग्रीमेंट में। अभी आपको चेंज उसमें ऐड करना है 10%, और वो 10% ऐड की हुई वैल्यू आपको कंपेयर करनी है किससे, अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर 10% ऐड करने के बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो फ्रेंड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी डीम्ड, तो फ्रेंड्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी डीम्ड एज द फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन। अगर आपको फिर भी कोई एग्जाम्पल, पूरा वीडियो देखने की मेहनत नहीं करनी है मेरा वो कैपिटल गेन वाला, आपको सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल चाहिए, तो मैंने एग्जाम्पल भी बना के रखे हैं। देखो, अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन यानी कि आपका सेल कंसिडरेशन एज पर योर सेल डीड या फिर एज पर अग्रीमेंट वो है 40 लाख, योर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वो आती है 45 लाख। तो अभी हमें कौन सा वाला फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन लेना है वो देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम अपना सेल कंसिडरेशन जो है 40 लाख, वो 40 लाख को हम प्लस 10% करेंगे, मतलब उसके 110% करेंगे, तो वो हो जाएगा 44 लाख। तो क्या वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसको एक्सीड करती है? तो द आंसर इज यस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 45 लाख विच एक्सीड्स 44 लाख, सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन विच इज ₹45 लाख। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं इसका बेटर क्लैरिटी के लिए। एग्जाम्पल 2 में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल 2 में एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज ₹10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1 लाख, सॉरी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज 1 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 1 करोड़ 5 लाख। अभी आप देखो तो हियर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डजंट एक्सीड सेल कंसिडरेशन इनटू 110%। हियर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डजंट एक्सीड सेल कंसिडरेशन इनटू 110%। कैसे? क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ है, 1 करोड़ का आप प्लस 10% करो तो अमाउंट आएगी 1 करोड़ 10 लाख। सो 1 करोड़ 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है 1 करोड़ 5 लाख है, वो एक्सीड नहीं करती 1 करोड़ 10 लाख को। तो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, वो अपना जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो है एज पर आपका अग्रीमेंट या एज पर आपका जो सेल डीड है, वही आपका फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन बन जाएगा विच इज ₹1 करोड़। मेरे से वहाँ थोड़ी एक प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, वो 1 लाख नहीं, इट शुड बी 1 करोड़, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। उतने तो आप इंटेलिजेंट हो ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। सो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन वुड बी माई फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन विच इज ₹1 करोड़। क्योंकि देखो कोई लोग ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं कि वो ये 1 करोड़ 5 लाख जो या 1 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 5 लाख को कंपेयर करते हैं, उसको कंपेयर करके उसमें से विच एवर इज हायर या विच एवर इज लेस ले लेते हैं। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको पहले सिर्फ कंपेयर यही करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे एक्सीड 110% से एक्सीड करती है या नहीं। अगर करती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन, अगर करती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन। अगर एक्सीड नहीं करती है तो फिर ये 110% करके जो अमाउंट आई वो कोई काम की ही नहीं है। तो आपका जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है, वही आपको ले लेना है एज अ फुल वैल्यू सेल कंसिडरेशन। डन फ्रेंड्स? यस। मूविंग अहेड, हम आगे देख रहे हैं अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट। ये हो गए सारे कैपिटल गेन्स के अमेंडमेंट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहा अमेंडमेंट्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पहले मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ डिविडेंड। अभी देखो फ्रेंड्स, डिविडेंड का जो अमेंडमेंट है वो सिर्फ देखने जाओ आप नंबर ऑफ सेक्शंस वाइज के कितनी सारी सेक्शंस में ये अमेंडमेंट हुआ है,
तो दैट इज ह्यूज। बहुत सारे इनकम टैक्स की प्रोविजंस को अमेंड किया गया है और तब जाके ये डिविडेंड वाला अमेंडमेंट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किया गया है। मैं जो अभी आपको बता रहा हूं वो वही सेक्शंस में चेंजेस बता रहा हूं जो आपको इंटरमीडिएट लेवल के लिए अभी एग्जामिनेशन के लिए काम के है। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट 115 बीएसी है, शायद उतना या उससे थोड़ा ज्यादा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो है डिविडेंड। चलो 115 बीएसी पूछे या ना पूछे उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मैं ऐसा गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि डिविडेंड वाला अमेंडमेंट है वो तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। कोई भी तरीके से वो पूछ सकते हैं। वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सम में पूछ सकते हैं, वो आपको जो अपना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम वाला पहला 10 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें एक पॉइंट एज अ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी वगैरह कुछ रख के दे सकते हैं, उसका डिविडेंड का एडजस्टमेंट इसमें से रख के दे सकते हैं, कुछ भी। या तो एक एमसीक्यू में भी वो आपको ये डिविडेंड वाला अमेंडमेंट दे सकते हैं, पर ये अमेंडमेंट वो देंगे आपको एग्जाम में पूछेंगे, दैट इज 110% श्योर, दैट इज 110% श्योर। ओके फ्रेंड्स, सो हम ये अमेंडमेंट बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और पूरा मतलब एज इफ जैसे एग्जामिनेशन पर्पज से ही पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे ऐसा दिखाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इनकम टैक्स की अलग अलग सेक्शंस की कितनी नॉलेज है, इसमें क्या चेंज हुआ, नो, वो मेरा पर्पज नहीं है। मेरा पर्पज ये है, मुझे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को यहाँ पे इंप्रेस नहीं करना। मेरा पर्पज यही है कि जो सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अमेंडमेंट समझ में आ जाए, उनको एग्जाम में क्या इफेक्ट देनी है वो समझ में आ जाए। दैट इज माय ओनली पर्पज। ओके, सो देखो, पहले हम देख लेते थे कि आप लोग अपनी एग्जाम के लिए क्या पढ़े, मतलब टिल असेसमेंट ईयर 2020-21 क्या सिचुएशन थी, और आपने जब नवंबर 2020 के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की होगी तो आपने क्या प्रिपरेशन की होगी, पहले हम वही देख रहे हैं। ओके, तो हम ऐसा समझ रहे थे कि इंडियन कंपनीज वर सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। इंडियन कंपनीज को क्या करना पड़ता था, वो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे अपने शेयर होल्डर्स को, उसके ऊपर इंडियन कंपनी टैक्स भर देती थी। ओके, उसके कारण इफेक्ट ऐसी आती थी कि हेंस डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज वर एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स अप टू ₹10 लाख पर एनम अंडर सेक्शन 1034। डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स को मिले वो क्या हो जाता था, वो 1034 के तहत एग्जम्प्ट हो जाता था। और पहले तो ऐसा ही था, 3-4 साल पहले तो ऐसा था कि पूरा डिविडेंड एग्जाम था। फिर आई थी एक सेक्शन 115 बीबीडीए करके, और 115 बीबीडीए ने एक अमेंडमेंट लाया था कि भाई 10 लाख से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपको उसके ऊपर भरना है 10% टैक्स। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है कि हेंस डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज वर एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अप टू ₹10 लाख और अमाउंट एक्सीडिंग ₹10 लाख पर एनम वाज सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीबीडीए। फिर हम क्या बोलते थे, फिर हम बोलते थे नो एक्सपेंसेस वर अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज। हमको ये रूल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पता ही है, हमको ये रूल इनकम टैक्स में पता है कि जो इनकम एग्जम्प्ट है ना उसके एक्सपेंसेस हम डिडक्ट नहीं, उसके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हम उसमें डिडक्ट नहीं कर सकते। तो जो इनकम पहले से एग्जम्प्ट थी उसके एक्सपेंसेस हम डिडक्ट नहीं करते थे। सो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी था, डोमेस्टिक कंपनी में से डिविडेंड मिलता था, तो उसके एक्सपेंसेस हम डिडक्ट नहीं करते क्योंकि 10 लाख तक तो वो एग्जम्प्ट था ही। सर 10 लाख से ज़्यादा अगर किसी को मिलता था डिविडेंड अगर, पर उसको 115 बीबीडीए में टैक्सेबल होता, तो क्या हम उसमें पहले एक्सपेंसेस माइनस करते? नहीं। एक्ट की लैंग्वेज, जो डिडक्शन की आपकी सेक्शन है, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी थी कि वो मना कर रही थी कि अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी तो आप उसमें से कोई एक्सपेंस डिडक्टिबल नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, अभी दूसरा क्या था, ये इसी में फॉरेन का, ये मैंने पूरा लिखा है इंडियन कंपनीज के रिगार्डिंग। ओके, फॉरेन कंपनीज के रिगार्डिंग क्या था, क्योंकि सर फॉरेन कंपनी का डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल था, यस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल था, यस। और फॉरेन कंपनीज के डिविडेंड में से अगर हम डिविडेंड फॉरेन कंपनी में से अर्न कर रहे हैं तो हम कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते थे, मतलब कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह अगर कुछ दिया हो, या बैंक को बैंक चार्जेस दिए हो, या फिर वो डिविडेंड जो है वो अर्न करने के लिए, मतलब मान लो कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपने मनी बोरो की है किसी और से, और वो बोरोड मनी पे आपने अगर किसी को इंटरेस्ट दिया है तो दैट इंटरेस्ट यू कुड डिडक्ट फ्रॉम दैट फॉरेन कंपनी डिविडेंड इनकम। वो तो पहले भी था ही। ओके, क्या सर उसमें फॉरेन कंपनी में भी अभी कोई चेंज है? तो वो हम समझ रहे हैं 2 मिनट के बाद। पहले चलो अपने देख ले रहे कि मेनली जो इंडियन कंपनी के रिगार्डिंग अभी असेसमेंट ईयर 2021-22 से क्या आ गया। तो इंडियन कंपनी के रिगार्डिंग ऐसा हो गया कि डोमेस्टिक कंपनीज आर नॉट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। डोमेस्टिक कंपनी को मना कर दिया कि भाई अभी आपको 115O वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना ही नहीं है।
गवर्नमेंट बोले कि पहले तो डिविडेंड इनकम पर मुझे 115 से टैक्स मिल जाता था, इसीलिए मैं शेयर होल्डर्स से नहीं मांग रहा था। अभी तो मुझे 115 वाला टैक्स मिल नहीं रहा, तो मुझे तो भाई इनकम के ऊपर टैक्स चाहिए। लेजिस्लेचर ने बोला ठीक है, अगर हम अमेंडमेंट 115 में ला रहे हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट बना दे रहे हैं 1034 और 115 BBDA में भी। 1034 में क्या अमेंडमेंट लाए? 1034 में अमेंडमेंट ला दिया कि भाई अभी से हेंस नाउ ऑनवर्ड्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी आर चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम ₹1। मतलब 1034 में जो ऐसा था कि इफ़ यू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, जो एग्जम्प्ट है वो पूरा निकाल दिया। मतलब अभी शेयर होल्डर्स के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी वाली भी डिविडेंड इनकम क्या हो गई? शेयर होल्डर्स के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी वाली भी डिविडेंड इनकम हो गई टैक्सेबल। क्लियर? अभी हुआ क्या, अगर डोमेस्टिक कंपनी की डिविडेंड इनकम ₹1 से टैक्सेबल है ही, तो अभी 115 BBDA की जरूरत ही क्या है? 115 BBDA इसलिए था कि अगर किसी को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड इनकम मिले तो उसको टैक्सेबल करने थे, क्योंकि अप टू 10 लाख तो एग्जम्प्ट था एज पर 1034। तो अब तो ₹1 से ही टैक्सेबल है, ₹1 से ही डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्सेबल है। तो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन वही है फ्रेंड्स कि अभी 115 BBDA की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको अपनी एग्जामिनेशन के लिए 115 BBDA नहीं पढ़नी। डिविडेंड इनकम है वो आपकी नॉर्मल इनकम, एनी अदर इनकम के जैसे, कोई स्लैब रेट की इनकम के जैसे आपको हो जाएगी टैक्सेबल। स्लैब रेट की इनकम के जैसे हो जाएगी टैक्सेबल। 115 BBDA में स्पेशल रेट था 10%, नो, अभी ये स्लैब रेट की इनकम की जैसे 10% टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, अभी देखो, अगर आप शेयर होल्डर्स को ऐसा बोल रहे हो कि भाई तुम्हारी डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्सेबल है, अभी आप शेयर होल्डर्स को ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हारी डिविडेंड इनकम जो है वो टैक्सेबल है, तो उसके साथ वो लोग बोलेंगे ना कि पहले तो हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं थी, इसलिए आप हमको एक्सपेंसेस डिडक्ट करने नहीं देते थे। तो अभी हमारी इनकम टैक्सेबल हो गई है, तो हमें उसमें से चाहिए एक्सपेंसेस का डिडक्शन। ओके, तो गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया। अभी ये जो अमेंडमेंट किया ना, उसका इम्प्लीकेशन हो गया थोड़ा ज़्यादा, मतलब जो बहुत सारे फैकल्टीज़ जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फॉरेन कंपनीज के डिविडेंड में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, पर अभी जो मैं आपको लाइंस बताने जा रहा हूँ उससे फॉरेन कंपनीज के डिविडेंड में भी अमेंडमेंट आ जाएगा एक तरीके से। मतलब फॉरेन कंपनी की डिविडेंड इनकम को आप कैलकुलेट करते थे, उसमें भी एक अमेंडमेंट आएगा। कैसे बता रहा हूँ, तो ऐसा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज सब्स्टिट्यूटेड वर्ड फॉर डिविडेंड्स इन प्लेस ऑफ डिविडेंड अदर देन डिविडेंड रिफर्ड इन सेक्शन 115O। तो ऐसा एक पहले ऐसा था कि आपको एक्सपेंस जो डिडक्शन मिलते थे वो डिविडेंड अदर देन डिविडेंड्स रिफर्ड अंडर सेक्शन 115O, मतलब जिसके ऊपर कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे के आती है, उसके सिवाय जो रह जाते वो डिविडेंड पे ही एक्सपेंसेस डिडक्शन मिलते थे। वो वर्ड निकाल के सिर्फ उस गवर्नमेंट ने वर्ड कर दिया डिविडेंड अंडर सेक्शन जो अपनी ये 57 है उसमें। पर अभी प्रोविजन क्या आई है, देखो प्रोविजन है जो मैंने हाईलाइट करके बताई है, उसमें बताया प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज 23D ऑफ सेक्शन 10 और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी डिफाइंड अंडर एक्सप्लेनेशन 35 ऑफ सेक्शन 10। अभी आप बोलोगे सर ये 1023D और 1035 क्या है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह, देखो बेसिकली म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनीज है, जो म्यूचुअल फंड्स है वो अपने यूनिट होल्डर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कौन से फॉर्म में होती है? वो भी होती है डिविडेंड के फॉर्म में, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज अल्टीमेटली करती क्या है कि वो जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है वो अपने पैसे कंपनीज की इक्विटी शेयर्स में ही लगाती है, तो उनको जो रिटर्न मिलता है वो कंपनी में से डिविडेंड मिलता है, तो वो जो अपना रिटर्न अपने यूनिट होल्डर्स को देते हैं वो भी एक तरह का डिविडेंड ही होता है। तो वो ये सेक्शंस वगैरह आपको पढ़ने की, उसमें डिटेल अमेंडमेंट जानने की कोई जरूरत नहीं। कहने की बात वही है कि पहले जो डिविडेंड इनकम है उसमें कुछ मना कर रहे हैं, क्या मना कर रहे हैं? तो टोटल डिविडेंड इनकम किसी भी तरह की जो डोमेस्टिक कंपनी के पास से मिल रही डिविडेंड इनकम है या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर को मिल रही डिविडेंड इनकम है, उसमें ऐसा बता रहे हैं, या फिर नहीं सॉरी, नॉट ओनली फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ऑल द डिविडेंड इनकम्स फ्रॉम एनी कंपनीज डोमेस्टिक या फॉरेन और ऑल द डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स, उसमें लिए ऐसा बोल रहे हैं प्रोवाइडेड नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। मैं ऐसा बोल रहा हूँ प्रोवाइडेड नो डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम। बाकी क्या जो 1035 वाला तक का लाइन है वो हमें तक की लाइन जो है वो हमें इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। सो प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम other than deduction on account of interest expense, and in any previous year such deduction shall not exceed 20% of the dividend income or income in respect of such unit or whatever। so मतलब जो यूनिट में से और वगैरह जो टोटल इनकम मिलती है उसका 20% से ज्यादा एक तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते
एंड इंपॉर्टेंट क्या बताया, नो डिडक्शन अदर देन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, नो डिडक्शन अदर देन ऑन अकाउंट ऑफ इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस इज अलाउड। सो ये लाइन का एप्लीकेशन यही होता है कि अभी आप डोमेस्टिक कंपनी में से जो डिविडेंड जो मिला है उसकी इनकम में से भी डिडक्शन ले सकते हो। पर क्या डिडक्शन होगा, डिडक्शन होगा सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है उसका ही। मतलब मान लो कि आपने कोई XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करने, XYZ कंपनी लिमिटेड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बोरो किए हैं, कोई PQR के पास से, किसी के पास से पैसे बोरो के रखे, आपने 10 लाख बोरो किए, वो 10 लाख लगाए या XYZ कंपनी लिमिटेड में, और ये 10 लाख के ऊपर आप इसको PQR को क्या कर रहे हो, आप PQR को पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, क्योंकि आपने उसके पास से बोरो किया है। यस, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये आप XYZ कंपनी लिमिटेड के पास से डिविडेंड मिले उसमें से डिडक्ट कर सकते हो, नथिंग एल्स। मतलब दूसरा सर क्या एक्सपेंस हम डिडक्ट करना चाहेंगे भी, आप जब डिविडेंड इनकम अपने बैंकर को बोल रहे हो कि आप मेरे बदले डिविडेंड रिसीव कर लो, तो बैंकर आपके पास से उसके लिए कमीशन ब्रोकरेज वगैरह चार्ज करते हैं। तो वो कोई टाइप के कमीशन ब्रोकरेज आपको अभी डिडक्टिबल नहीं है। आपको जो डिडक्टिबल है वो कौन से है, सिर्फ इंटरेस्ट, और उसमें भी लग गई है लिमिट। कितनी लिमिट, जैसे कि आपको XYZ कंपनी लिमिटेड और सब डिविडेंड जितने आपको टैक्सेबल डिविडेंड मिले उसका सबका टोटल कर लो, मान लो वो आ गया 10 लाख रुपीज़, आपको जितना डिविडेंड मिला है वो आ गया 10 लाख रुपीस। अभी आपने इसके पास से जो आपने बोरो जो किए है वो उसके ऊपर जो आप पैसे दे रहे हो वो 10 लाख के 20%, 10 लाख के 20%, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चलो इसको तो अपने दे रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए, 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो 1 लाख दिया, तो दिस इज विद इन द लिमिट। तो 10 लाख की इनकम, उसमें से 1 लाख का एक्सपेंस आप डिडक्ट कर सकते हो। पर मान लो अपने को डिविडेंड इनकम जो मिल रही है 10 लाख, पर अपने जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो एक्सपेंस कर रहे हैं 3 लाख, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दे रहे हैं वो है 3 लाख। तो 10 लाख के 20% मैक्सिमम 2 लाख विल बी अलाउड। सो 1 लाख का आपका एक्सपेंस वो होगा, वो हो जाएगा डिसअलाउड, वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको लगेगा सर इतनी लंबी प्रोविजंस है, वो हम लोग ऐसे तो कैसे, मतलब चलो अभी आप बोले उस टाइम पे नोट्स बना के भी हमने रखा, फिर भी ऐसे तो हम लोगों को याद नहीं रह सकती। तो मैंने आपको बना दिया है एक बहुत बढ़िया चार्ट, पर उससे पहले हमें एक और पॉइंट इसमें समझना है। यहाँ पे मैंने जो लाइन लिखी है वो पढ़ो, विच मीन्स इफ यू हैव बोरोड एनी अमाउंट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड पेड इंटरेस्ट ऑन द सेम, देन डिडक्शन वुड बी अलाउड फॉर इंटरेस्ट पेड बट रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। अभी इसमें डिविडेंड के लिए ऐसा नहीं बोला डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ओनली, मतलब जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है ना, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड, उसमें भी अभी ये रिस्ट्रिक्शन 20% वाला और ओनली इंटरेस्ट वाला ये लग गया। पहले क्या था कि फॉरेन कंपनी की डिविडेंड इनकम के सामने आप कितना भी एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते थे, फॉरेन कंपनी की डिविडेंड इनकम के सामने कितना भी एक्सपेंस डिडक्ट कर सकते थे, और कोई भी टाइप का लाइक इंटरेस्ट हो या कमीशन ब्रोकरेज कुछ भी आप डिडक्ट कर सकते थे। पर अभी फ्रेंड्स, द ओनली इवन फ्रॉम फॉरेन कंपनी डिविडेंड्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डिडक्ट इज interest as an expense, and that too restricted to 20% of the dividend income. Clear friends? आपको आपकी टोटल डिविडेंड इनकम जो है किसी भी सोर्स से आपको जो डिविडेंड इनकम मिलती है उसका टोटल करो, उसका 20% करो, उससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस टू अर्न द डिविडेंड इनकम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इंटरेस्ट इनकम वही डिडक्शन मिलता है जो टू ऑन द डिविडेंड इनकम है। आपने अपने बिजनेस के लिए लोन ली है, प्लांट एंड मशीनरी के लोन लिए, उसके लिए आपने अगर इंटरेस्ट दिया, आपने बिल्डिंग का रिनोवेशन करने के लिए इंटरेस्ट लोन लिए, उसका इंटरेस्ट दिया, तो उसका डिडक्शन यहाँ नहीं मिलता। यहाँ इंटरेस्ट वही इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है जो इंटरेस्ट आपने लिया है, जो लोन आपने ली है, इंटरेस्ट आपने पे किया है, वही लोन के लिए जो पैसे आपने लिए थे टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स, from that you are earning the invest in the shares, from that you are earning the dividend income. Clear friends? So this is it. यही है जो चीज़ आपको ध्यान में लेनी है वो है। चलो अभी आपकी ईज के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत बढ़िया एक टेबल बना दिया है जो आपको पूरा डिविडेंड का अमेंडमेंट शो कर देगा। इतना बड़ा टेबल है। चलो अभी अब हम पहले से ऊपर से जाते और रिवाइज कर लेते अपना टॉपिक, और 1 by 1 आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या काम किया है इसके लिए। तो
पहले मैंने जैसे समरी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ डिविडेंड, आप देखो कितना यूजफुल है, आपको ऊपर का कुछ पढ़ने की, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही एक टेबल जो मैंने बनाया है वही आपको देखना है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो पहले क्या था, प्रोविजन अप टू 2020-21 क्या थी, और प्रोविजन फ्रॉम 21-22 क्या हो गई, वो मैंने लिखा है। तो देखो ग्रीन वाली है वो बता रही है अपने को इंडियन कंपनीज वर लायबल टू पे टैक्स, क्या, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इंडियन कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को भरना था। अभी असेसमेंट ईयर 2021-22 से क्या हुआ, वो हो गई एबोलिश। ओके, फिर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, तो पहले हम क्या पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अप टू ₹10 लाख और अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख सब्जेक्ट टू 115 BBDA। अभी क्या हो गया, अभी वो हो गई टैक्सेबल और सेक्शन 115 BBDA नॉट नीडेड। देन डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम डिविडेंड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, मैंने देखो अलग अलग करके बताया डोमेस्टिक कंपनीज। तो पहले क्या था, तो कि भाई डोमेस्टिक कंपनी में से हम कोई एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं कर सकते थे, पर अभी तो कि इन्वेस्टर कैन क्लेम डिडक्शन ओनली फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंस रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड इनकम। तो चलो अभी कुछ डिडक्ट कर सकते हैं, कुछ डिडक्ट कर सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ओनली इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड इनकम। देन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, तो वो तो पहले भी शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल था, अभी भी शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है, पर ऐसा नहीं है कि उसकी टैक्सेबिलिटी टोटली सेम ही रहेगी, नहीं, एक जो चेंज आ गया वो एक्सपेंसेस के कारण आ गया। पहले जो है इन्वेस्टर कुड क्लेम, पहले क्या था, इन्वेस्टर कुड क्लेम एनी एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, ब्रोकरेज और इंटरेस्ट विदाउट एनी लिमिट, पर अभी के ईयर से क्या हो गया, इन्वेस्टर कैन क्लेम डिडक्शन ओनली फॉर द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द ग्रॉस डिविडेंड इनकम। ओके सर, चलो ठीक है, डिविडेंड वाला अमेंडमेंट खत्म तो हो गया, हमको समझ में आ गया पूरा सर, थैंक यू डिविडेंड वाला अमेंडमेंट इतना अच्छा समझाने के लिए। ये सिर्फ इतना ही डिविडेंड का अमेंडमेंट नहीं है, डिविडेंड की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अभी आपको डिविडेंड का पूरा जो एप्लीकेशन है वो देखना है। ये डिविडेंड के कारण जो चेंज हुआ, तो आपको एक और अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा, मैंने देखो यहाँ पे स्टार करके लिख दिया, ऑल्सो लर्न सेक्शन 80M विच इज न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन for deduction from gross total income which is applicable from assessment year 2021-22, जो मैंने बताया है कि this you can learn from amendments from deduction from gross total income जो अपने ही यहाँ पे दिए, and sum solved after 80M for better clarity, मैंने एक सम भी दे रखा है आपको बना के मस्त, जिसके कारण जिसकी हेल्प से आप पूरा ये डिविडेंड का अमेंडमेंट प्लस 80M की एप्लीकेशन पढ़ सकते हो। प्लस मैंने लिखा है यहाँ पे डबल स्टार करके, डिविडेंड इनकम आल्सो हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन सरचार्ज कैलकुलेशन, डिविडेंड इनकम आल्सो हैज एन इम्प्लीकेशन ऑन सरचार्ज कैलकुलेशन। तो वो वाला है, वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे हमें साथ में पढ़ना ही पड़े, तो वो हम जब अलग से सरचार्ज वाला अमेंडमेंट पढ़ेंगे किसी और लेक्चर में तब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वो वाला बाद में देख लेंगे, पर ये जो 80M है उसके लिए मैंने क्या बोला, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने चैप्टर डिडक्शन अमेंडमेंट्स फ्रॉम डिडक्शन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखो यस, यह आ गया अपना हीरो 80M डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, एक नई सेक्शन गवर्नमेंट को लानी पड़ी। क्यों लानी पड़ी, तो पहले मैं समझाता हूँ आपको लॉजिक कि क्यों ये सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों की गई है। अगर आप वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक then and only then you will be able to remember the things given in that, and then and only then you will be able to understand the section 80M। लॉजिक क्या है वो मैंने पूरा यहाँ पे बोर्ड पे रख के दिया हुआ है, और देखो आपको समझ में आ जाए उसके लिए मैंने एक ऐसा कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने की भी ट्राई की है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता था कि भाई ABC लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी, एक ABC लिमिटेड है डोमेस्टिक कंपनी है, वो क्या करती है, वो अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है किसको, PQR लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी को। अपना जो हीरो है, अपना असेसी है, ये पिक्चर में हम जिसके कारण मतलब जिसके लिए हम 80M पढ़ रहे हैं वो है PQR लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी। इसीलिए मैंने क्या किया है, उसको मैंने थोड़ा हाईलाइट करके रखा हुआ है, सो आप लोगों को समझ में आए कि हम 80M किसके लिए पढ़ रहे हैं। हम 80M ABC के लिए नहीं पढ़ रहे, हम 80M पढ़ रहे हैं PQR लिमिटेड के जैसा, वरना तो क्या हो जाएगा, साउथ की मूवी के जैसा हो जाएगा। आप आधा घंटा देखते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो हीरो है ही नहीं, हीरो तो कोई दूसरा है। तो आपको पता चल जाए कि मेन हीरो अपने पिक्चर में कौन है। उसी के लिए मैंने क्या किया है, मैंने किया है
PQR को हाईलाइट, ठीक है। अभी हो क्या रहा है कि ABC लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपना डिविडेंड PQR लिमिटेड को। सर ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड को डिविडेंड क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगी? क्योंकि PQR लिमिटेड एक इन्वेस्टिंग कंपनी है और उसने क्या किया है, उसने ABC लिमिटेड को उसने ABC लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, तो अगर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा है तो ABC लिमिटेड क्या करती है, वो अपने सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसे ही वो PQR लिमिटेड को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, तो भाई देखो मैंने बाजू में लिख रखा है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ PQR लिमिटेड। क्यों सर? अभी आपने पढ़ा है अमेंडमेंट कहाँ पे? अभी आपने पढ़ा है अमेंडमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कि डोमेस्टिक कंपनी के पास से भी जो डिविडेंड मिलता है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा टैक्सेबल। ओके, तो वो हो गया भाई PQR लिमिटेड के हाथ में टैक्सेबल। अभी क्या हो रहा है, अभी वो PQR लिमिटेड है, वो भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना। यस, तो PQR लिमिटेड वो अपनी इनकम में से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड किसको? शेयर होल्डर्स ऑफ PQR लिमिटेड को। ओके, अभी PQR लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी, वो डिस्ट्रीब्यूट करे अपना डिविडेंड शेयर होल्डर्स ऑफ PQR लिमिटेड को, तो उनको भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ PQR लिमिटेड। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि देखो ABC लिमिटेड ने 10 लाख रुपीस PQR लिमिटेड को दिए हो और वो 10 लाख वो PQR की इनकम में ऐड हो गए। वही हुआ, वो जो 10 लाख है वो PQR की इनकम में ऐड हो गए और अपनी इनकम PQR है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो उनकी इनकम क्या है, PQR की इनकम में से ABC के पास से जो मिला वो डिविडेंड भी उसकी एक इनकम ही है। यस, तो मान लो कि PQR है वो वही इनकम में से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, अपने शेयर होल्डर्स को। ओके, तो भाई देखो सेम इनकम जो ABC के पास से मिली PQR को, उस पे PQR ने भर दिया टैक्स, क्योंकि टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ PQR लिमिटेड वो था, वो डिविडेंड इनकम। सेम इनकम सेम अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूट्स टू शेयर होल्डर्स, उसके ऊपर दोबारा से भरेंगे टैक्स कौन, क्योंकि उसके ऊपर दोबारा से भरेंगे टैक्स शेयर होल्डर्स, क्योंकि भाई हमने पढ़ा है कि अब डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल नॉट एग्जम्प्ट। सर अभी आपने पढ़ा है, तो ये तो हो रहा है भाई डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम। तो देखो ऐसी कंफ्यूजन हो रही है, डबल टैक्सेशन ऑफ द सेम इनकम। तो भाई ये कंफ्यूजन ना हो और ऐसा डबल टैक्सेशन ना हो। गवर्नमेंट अपनी जो है वो ऐसी नहीं है कि भाई एक की एक इनकम के ऊपर से उनको 2 बार टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को सभी इनकम के ऊपर से टैक्स चाहिए, पर गवर्नमेंट को एक इनकम के ऊपर से 2 बार टैक्स नहीं चाहिए। तो जब कभी ऐसा डबल टैक्सेशन की सिचुएशन हो जाए तो गवर्नमेंट आपको बचाने के लिए कुछ लेके आती है। तो ये इस बार जो गवर्नमेंट जो सुपर हीरो लेके आई है बचाने के लिए डबल टैक्सेशन को, दैट सुपर हीरो इज सेक्शन 80M, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। अभी होगा क्या, हम प्रोविजंस बाद में देख लेते हैं, पहले हम यहीं पे एक चीज समझते हैं। अभी होगा क्या, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट देखेगी कि भाई देखो PQR लिमिटेड है, उसने क्या किया, उसने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भरा, हाँ, और उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर्स को, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने भी वही डिविडेंड के ऊपर टैक्स भरा। वो डिविडेंड हो सकता है कि वही इनकम में से मिला हो जिसमें से जो PQR को मिली थी और जिसके ऊपर PQR ऑलरेडी टैक्स भर के आया हुआ है। ओके, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला 1 मिनट, हम PQR को कुछ बेनिफिट दे देते हैं। क्या? हम PQR को ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर तुझको डोमेस्टिक कंपनी के पास से ऐसे डिविडेंड मिला है, ओके, और तू वही मतलब उतना जितना तुझे डिविडेंड मिला है उतना तू डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, ओके, तो हम वो डिविडेंड बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल नाउ इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो हम पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो टैक्सेबल कर ही देंगे। तो हम समझ रहे हैं किसके एंगल से, PQR लिमिटेड। अपना हीरो कौन है, अपना हीरो है PQR लिमिटेड। सो हम समझ रहे हैं PQR लिमिटेड के एंगल से, और पहले PQR लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में हम ये डिविडेंड क्या कर देंगे, हम ये डिविडेंड कर देंगे टैक्सेबल, IFOS। वो PQR लिमिटेड की आप ग्रॉस टोटल इनकम देखोगे तो उसमें ये आ चुका होगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम में ये डिविडेंड की इफेक्ट आ गई है, वो टैक्सेबल हो गया है। पर उसमें से बोल रहे कि हम लेस आपको करने देंगे सेक्शन 80M के अंदर, जो अपने 80C to 80U के डिडक्शन मिलते हैं उसके साथ, जो ग्रॉस टोटल इनकम के डिडक्शन है उसके साथ हम ये डिविडेंड इनकम जो आपको मिली है वो अमाउंट देखो, और आपने जो शेयर होल्डर्स मतलब अपने शेयर होल्डर्स को जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो उसके ऊपर तो शेयर होल्डर्स टैक्स भरने ही वाले हैं। तो जो अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है,
जो अमाउंट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है वो हम यहाँ से आपको कर देने देंगे लेस, क्योंकि उसके ऊपर हमें आपसे टैक्स नहीं चाहिए। उसके ऊपर का टैक्स जो है वो हम आपके शेयर होल्डर्स के पास से उनकी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड करके ले लेंगे। हमें आपके पास से वही टैक्स चाहिए कि जो डिविडेंड की इनकम आपने अपने पास तो ले ली पर आपने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दी। मतलब हाँ, अगर देखो आपको डिविडेंड मिला 10 लाख पर आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर्स को 8 लाख, तो आपकी इनकम में तो आ जाएगी 10 लाख, पर एटीएम में डिडक्शन मिलेगा 8 लाख, तो बाकी के 2 लाख के ऊपर तो आपके पास से पीक्यूआर के पास से डिडक्शन पीक्यूआर के पास से टैक्स हमको मिल चुका है। और सर व्हाट अबाउट दिस 8 लाख? ये 8 लाख वाला टैक्स गवर्नमेंट बोल रही है हम शेयर होल्डर्स ऑफ पीक्यूआर के हाथ में ले रहे हैं। क्लियर और नॉट? तो ये एटीएम जो सेक्शन 80M है वो डिडक्शन दे किसको रहा है? सेक्शन 80M है वो डिडक्शन दे रहा है पीक्यूआर लिमिटेड जैसी कंपनीज को। कि क्लियर और नॉट? कि जो क्या करती है, जो डिविडेंड इनकम कलेक्ट करती है और वही डिविडेंड इनकम अपने शेयर होल्डर्स, मतलब वही डिविडेंड में से इनकम अपने शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्लियर? सो आई होप आई एम डन विद द लॉजिक। मैंने आपको पूरा मतलब वो भी मतलब अभी समझा ही दिया है कि कितना डिडक्शन मिलेगा वगैरह वगैरह। अब हमें सिर्फ सेक्शन की बाहर लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करना है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या बता रही है सेक्शन। तो ये सेक्शन बोल रही है विच इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22 डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ शेयर होल्डर फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट सेक्शन 80M हैज बीन इंसर्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021-22। कंडीशंस क्या है? तो कंडीशंस बोल रही है द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। क्या? असेसी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज इन्वेस्टर कंपनी। अपना हीरो कौन है? वो पीक्यूआर। तो आपकी शीट में अगर बाजू में लिख देना या अपनी नोट्स में बाजू में लिख देना पीक्यूआर लिमिटेड। यस, तो हम उसके एंगल से समझते हैं। तो असेसी इज अ डोमेस्टिक कंपनी। असेसी क्या होना चाहिए? डोमेस्टिक कंपनी जिसको एटीएम में डिडक्शन मिलता है। ओके, इनकम ऑफ असेसी इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनीज, फॉरेन कंपनीज और बिजनेस ट्रस्ट। तो उसकी इनकम उसमें है क्या? उसकी इनकम में भी है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट। ओके, फिर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर कंपनी टू इट्स ओन शेयर होल्डर बिफोर द ड्यू डेट, दैट इज द डेट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). वो मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्या है। पर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर कंपनी। तो पीक्यूआर जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। मैंने जैसे आपको बोला कि पीक्यूआर ये 10 लाख अपने पास ही रखता है, वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो फिर गवर्नमेंट को शेयर होल्डर्स के पास से टैक्स मिलने वाला नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो गवर्नमेंट एटीएम का डिडक्शन देने वाली नहीं है। तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली बता रही है कि भाई कंडीशन ये है कि डिविडेंड जो है वो आपको क्या करना है? वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने शेयर होल्डर्स को। आप अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। और नॉट ओनली दैट, उसके लिए रख दी टाइम लिमिट। ये तो क्या बोलेगी? ये तो बोल देंगे कि चलो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे, फिर कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या तो फिर बोल रहे हैं कि ये इनकम में से हम फ्यूचर में देंगे। नहीं भाई, टैक्स की प्रोविजन है तो टाइम लिमिट्स में सब कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो टाइम लिमिट रखिए एक ड्यू डेट। अभी ये ड्यू डेट कौन सी है? तो वो ड्यू डेट में बता रहे हैं कि ड्यू डेट इज 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). मतलब जो लास्ट डेट होती है उससे पहले अपनी लास्ट डेट, मतलब ऑडिट कंपनी है तो ऑडिट वाला केस ही हुआ। तो कंपनीज के लिए इस साल से जो अमेंडमेंट हुआ है, आप लोग ऐसा पढ़े होंगे 30 सितंबर है, वो अमेंडमेंट हो चुका है, वो हुआ है 31 अक्टूबर। तो वो जो डेट है वो है 31 अक्टूबर। तो आई कैन से दैट 31 अक्टूबर से एक महीने पहले, मतलब 30 सितंबर तक आपको क्या करना है? 30 सितंबर तक आपको करना है ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को अपने डिस्ट्रीब्यूट। जितना आपने 30 सितंबर तक डिस्ट्रीब्यूट किया होगा उतने का ही आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझा रहा हूँ। सो कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशन विच आर सिंपल। नंबर 1 इज असेसी इज अ डोमेस्टिक कंपनी, दैट इज इन्वेस्टर कंपनी। नंबर 2, इनकम ऑफ द असेसी इंक्लूड्स डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट। ओके, उसको पहले इनकम तो मिलनी चाहिए, फिर डिडक्शन मांगेगा ना। इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन काय को मांग रहा है? Then dividend is distributed by investor company to its own shareholders before the due date, जो मैंने आपको बताई वो। ओके, नाउ डिडक्शन बहुत कुछ लिखा है। अगर आप बैर सेक्शन रीड करने चाहो, अगेन मैं यहाँ पे अपना नॉलेज फ्लॉन्ट ऑफ करने नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो मैंने देखो हाईलाइट करके रख दिया है, उतना ही पार्ट आप समझो तो भी काफ़ी है कि भाई अग्री डेट गेट डिविडेंड इनकम एज पर सेक्शन 8 ऑफ द
इन्वेस्टर कंपनी मतलब इन्वेस्टर कंपनी को एग्रीगेट डिविडेंड इनकम कितनी मिल रही है, सारे सोर्स में से, सारे सोर्स मिला के उसको डिविडेंड इनकम कितनी, उसमें डोमेस्टिक भी आ गई, फॉरेन भी आ गई, बिजनेस ट्रस्ट सब आ गया। ओके, और वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है बाय इन्वेस्टर कंपनी टू इट्स ओन शेयर होल्डर बिफोर द ड्यू डेट, विच एवर इज लेस। तो मतलब उसको मिल रही है डिविडेंड इनकम, वो 10 लाख है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 8 लाख, तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा 8 लाख का। मान लो उसको डिविडेंड इनकम मिली है 10 लाख, पर उसकी अपनी भी कुछ और अर्निंग भी होगी ना, उसकी अपनी बिजनेस अर्निंग भी है, उसमें से वो ज़्यादा बाकी का भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। उसको अदर कंपनीज के पास डिविडेंड इनकम 10 लाख है, पर अदर इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो डिविडेंड क्या कर रहा है, शेयर होल्डर्स को PQR लिमिटेड ज़्यादा दे रहा है, तो वो 12 लाख डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्या 12 लाख डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, डिविडेंड इनकम से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता। जो IFOS में आपने ऐड किया है उससे ज़्यादा आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स? सो एग्रीगेट डिविडेंड इनकम ऑफ द इन्वेस्टेड कंपनी एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टेड कंपनी टू इट्स ओन शेयर होल्डर बिफोर द ड्यू डेट विच एवर इज लेस, दैट इज डिडक्शन। और बिफोर द ड्यू डेट जितना डिस्ट्रीब्यूट किया वही आएगा। आपको एग्जाम में ऐसा भी बता सकते हैं, मतलब ऐसा भी सम फ्रेम कर सकते हैं कि देखो भाई ये ऐसा ATM टेस्ट कर रहा हो तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो 2 इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि एक बताएंगे ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो बोलेंगे 15 सितंबर को, तो वो ध्यान में ले लेना है क्योंकि इट इज 1 मंथ प्रायर टू डेट। फिर एक बताएंगे एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है 15 अक्टूबर को, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बताएंगे कि विच इज बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, ऐसा भी बोलेंगे 15 अक्टूबर इज बिफोर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो बोले रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले नहीं, रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के 1 महीने पहले से आपको क्या कर देना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी डिडक्शन मिलेगा। तो 15 अक्टूबर वाला भी वो डिविडेंड आप डिडक्शन में काउंट मत करना। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऐसा अगर आपको कंफ्यूजन के लिए कुछ डाले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई डेट जो है अपनी 30 सितंबर वो याद रखनी है कि उससे पहले जो डिविडेंड जो है वो दिया हुआ है वही जो डिविडेंड है वो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर। बाकी कुछ वर्ड्स है वो मैंने बैर प्रोविजंस में से उठाए, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। जैसे मियर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज नॉट सफिशिएंट, आपको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करना है। डबल डिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब एक बार आपने ये सेक्शन में डिडक्शन ले लिया तो आपको फिर वो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके रिस्पेक्ट में और कोई मतलब और कोई सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। क्लियर फ्रेंड्स? सो ये हुआ ये डिविडेंड इनकम वाला पॉइंट। चलो अभी मैंने एक एग्जाम्पल फ्रेम करके रखा है, वो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, उसमें आपको अपना अदर सोर्सेज वाला जो अमेंडमेंट है वो भी कवर अप हो जाएगा और उसमें आपको ATM वाला अमेंडमेंट है वो भी कवर अप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स? सो एग्जाम्पल इज लाइक दिस, हम इसको जूम करके देखते हैं कि ये एग्जाम्पल में जो लैंग्वेज है वो क्या है। यस, एग्जाम्पल इज लाइक दिस, ABC कंपनी, ABC अ डोमेस्टिक कंपनी, और थोड़ा ज़्यादा जूम हो सके तो अच्छा रहेगा। ओके, कंपनी ABC is a domestic company which has borrowed rupees 10 crore from bank and invested rupees 50 crore in the shares of company XYZ. Okay, on April 1, 2020। देखो अभी हो क्या रहा है, सबका ध्यान क्वेश्चन में। कंपनी ABC एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसने बोरो किए 10 करोड़ रुपीस फ्रॉम अ बैंक। अपना हीरो जो है ये क्वेश्चन में वो है कंपनी ABC। उसने बोरो किए 10 करोड़ रुपीस फ्रॉम अ बैंक एंड इन्वेस्टेड 50 करोड़ इन द शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी XYZ, कोई कंपनी XYZ लिमिटेड होगी उसके शेयर में 1 अप्रैल 2020 को इन्वेस्ट किया। ऑन 18 सितंबर 2020 कंपनी XYZ हैज पेड डिविडेंड ऑफ 5 करोड़ टू कंपनी ABC इन बिटवीन द ईयर। ये शायद पिछले साल का हो या इंटरिम डिविडेंड हो, व्हाटएवर। कंपनी अपनी जो ABC है, अपनी ABC कंपनी जो है, अपना जो असेसी है ABC लिमिटेड, उसके हाथ में इनकम कितनी आई, उसको इनकम आई 5 करोड़। अभी ये इनकम उसको मिली किसके पास से, एक डोमेस्टिक कंपनी के पास से, पर हम अब अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक कंपनी के पास से भी जो इनकम मिलती है वो क्या है, वो डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल अंडर सोर्सेज, अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यस, ओके। अभी हुआ क्या, अभी हुआ यूँ कि कंपनी ABC हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 1.2 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यस, 1.2 करोड़ किसको दिया होगा, उन्होंने दिया होगा जिसके पास से पैसे बोरो किए थे बैंक को, 10 करोड़ रुपीस बोरो किए थे। देखो पहली लाइन में ही है, डोमेस्टिक कंपनी हैज बोरोड 10 करोड़ फ्रॉम अ बैंक, तो बैंक को दिया होगा 1.2 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल 2021। ओके,
फिर उसने ब्रोकरेज दी बैंक को 10 लाख रुपीस ये डिविडेंड अर्न करने के लिए, एंड ऑन जुलाई 1 2021 कंपनी एबीसी पेड डिविडेंड ऑफ ₹3 करोड़। ओके, जुलाई 1 2021 में कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड 3 करोड़ का। तो बोल रहे थे टैक्सेबिलिटी फॉर द कंपनी एबीसी लिमिटेड विल बी एज फॉलोज, मतलब कैसी होगी, तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 5 करोड़ की मिल गई आपको इनकम, ये इनकम का क्या हो गया, इनकम का क्या होगा, ये आपको टैक्सेबल हो जाने वाली है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ओके, अभी ये इनकम में से आपको डिडक्शन मिलता है कोई एक्सपेंसेस का, यस, तो एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्या मिलेगा, तो कि भाई एक इंटरेस्ट पे किया हुआ है, एक ब्रोकरेज पे की हुई है, तो इंटरेस्ट वाला डिडक्शन है वो मिलेगा, पर अपने अभी पढ़ा अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 57 के ब्रोकरेज वाला जो डिडक्शन है, ब्रोकरेज वाला जो एक्सपेंस है उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ब्रोकरेज का जो 10 लाख का डिडक्शन तो भूल ही जाओ। इंटरेस्ट वाले डिडक्शन में भी एक लिमिट है, वो लिमिट है कि आप अपनी इनकम 5 करोड़ उसके 20% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते। तो 5 करोड़ का 20% हो रहा है 1 करोड़। ओके, तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं ले सकते। आपने इंटरेस्ट कितना पे किया है 1.2 CR, पर आप 1.2 CR और 1 करोड़ विच एवर इज लेस आप उतना ही डिडक्शन ले सकते हो, तो हो गया 1 करोड़। तो आपकी IFOS में टैक्सेबल इनकम फाइनल जाएगी वो कितनी जाएगी, तो 5 करोड़ लेस 1 करोड़, तो IFOS में जो टैक्सेबल जाएगी वो 4 करोड़ होगी। यस, तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें 4 करोड़ एडेड होगी। क्लियर और नॉट? यस। अभी क्या हो रहा है कि एबीसी लिमिटेड उसने पे किया है, देखो डिविडेंड ₹3 करोड़, मतलब अपने शेयर होल्डर्स को, और कब किया है 1 जुलाई, मतलब ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। यस, ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट अगर उसने ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट अगर उसने पे कर दिया है, ऑन और बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट अगर उसने डिविडेंड पे कर दिया है, तो उसका क्या मिलेगा, ATM के अंदर डिडक्शन। तो कितना मिलेगा, तो क्या सर जितना उसको डिविडेंड इनकम मिली थी उतना, तो डिविडेंड इनकम जो उसने रिसीव किया है वो है 5 करोड़, पर उसने जो डिस्ट्रीब्यूट किया दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3 करोड़, तो उसको 3 करोड़ जो है विच एवर इज लेस, हमने देखा तो 3 करोड़ उसको ATM में से डिडक्शन मिल जाएगा। सो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ATM 3 करोड़, तो 1 करोड़ विल बी द फाइनल चार्जेबल इनकम फ्रॉम डिविडेंड इन हैंड्स ऑफ मिस कंपनी एबीसी। एबीसी को कोई पूछे कि डिविडेंड की इनकम के ऊपर कितना टैक्स भरना पड़ा, तो मतलब कितनी डिविडेंड की इनकम के ऊपर टैक्स भरना पड़ा, तो वो 1 करोड़ आंसर आएगा। पर कोई ऐसा पूछे कि IFOS में एबीसी की IFOS में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कितनी इनकम चार्जेबल होगी, ऐसा MCQ में पूछे, तो दैट विल बी 4 करोड़। क्लियर और नॉट? यस, देखो मैंने पूरा आंसर भी आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है सॉल्यूशन, विच यू कैन सी लेटर ऑन। डिविडेंड 5 करोड़, इसमें ये एक्सपेंस लेस, दोनों में से विच एवर इज लेस 1 करोड़, इंटरेस्ट एक्सपेंस का डिडक्शन मिला, ब्रोकरेज का डिडक्शन अलाउड नहीं है, नो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 57, तो अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम 4 करोड़, लेस डिडक्शन, तो डिडक्शन में डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स ऑन और बिफोर द 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR 3 करोड़, डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन टोटल 4 करोड़ विच एवर इज लेस, सो सॉरी 3 करोड़ और 4 करोड़ में 4 करोड़ में से विच एवर इज लेस, नॉट 5 करोड़ 4 करोड़, क्योंकि वो ही इंक्लूड हुई है टोटल इनकम में। यस, विच एवर इज लेस, सो 3 करोड़, तो उसमें से जो फाइनल आंसर है अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम दैट इज ₹1 करोड़। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस आई एम डन विथ, नाउ आई कैन से आई एम ऑलमोस्ट डन विथ द डिविडेंड income related amendments, dividend income related amendments. Okay friends, so now I am moving ahead for rest of the amendments of income from other sources. income from other sources में बाकी कुछ amendment जो है वो छोटे बड़े हैं वो हम consider कर रहे हैं, तो ऊपर ले जाओ प्लीज थोड़ा। yes, amendment number 2 is money or property received without consideration or inadequate consideration, ऐसा कुछ हम पढ़ते हैं। मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और इनएडेक्वेट कंसिडरेशन, ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं। तो उसमें जो अमेंडमेंट है वो क्या है, वो मतलब जो गिफ्ट इनकम की टैक्सेबिलिटी के बारे में जो बात होती है वही है। देखो बेसिकली कोई इतना बड़ा अमेंडमेंट है नहीं, जिन लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अच्छी तरीके से पढ़ा है, जिन लोगों ने मेरे पास से पढ़ा है, जो ड्रीमेक्स के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ये प्रोविजंस बहुत अच्छी तरह से आती है। तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि 5 अलग अलग कैटेगरी में हम क्या करते हैं कि गिफ्ट की इनकम को डिवाइड कर देते हैं। 5 अलग अलग कैटेगरीज में गिफ्ट की इनकम्स को डिवाइड करते हैं।
तो जो लोग मेरे पास पढ़े उनको पता है कि गिफ्ट अलग अलग 5 टाइप में टैक्सेबल होती है। एक जो होता है वो है सम ऑफ मनी। अगर आपको कैश या चेक ऐसे कोई रुपए ही दे दे तो उसमें हम पढ़ते थे कि 50,000 से एक्सीड हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है टैक्सेबल। दूसरा हम ऐसा पढ़ते थे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन अगर मिला है। तीसरा हम पढ़ते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी, तीसरा हम पढ़ते थे, थोड़ा हम उसको यस ऐसे करके देखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो उसमें अमेंडमेंट तो उसमें हम पढ़ते थे। फिर हम जो पढ़ते थे वो होता था मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन और मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन विच इज लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू। ऐसे 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके हम गिफ्ट को, इनकम को चार्जेबल टू टैक्स करते हैं। देखो अभी ये अमेंडमेंट का लेक्चर है, यहाँ पे मैं IFOs नहीं पढ़ा रहा, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल फॉर ऑल दिस 5 पॉइंट्स। इफ यू वांट द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दिस पॉइंट्स यू कैन आस्क मी कि सर इसका वीडियो लेक्चर दे दो अदर सोर्सेज का जिसमें आप पढ़ा रहे हो हमको जिसमें आप पढ़ा रहे हो हमको गिफ्ट की चार्जेबिलिटी। आई विल प्रोवाइड यू। अभी जो समझना है, देखो बाकी सबको तो आपको देखना ही नहीं, बाकी ये सब आपको पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको जो शीट दे दूंगा उसमें आपको ये सब की चार्जेबिलिटी क्या है वो सब आपको दिखाई देगा। जो अमेंडमेंट है वही आपको अभी देखना है। अमेंडमेंट सिर्फ एक ही जगह पे है और वो भी इट इज़ टू सिंपल। अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन विच इज़ लेस देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वो चार्जेबल टू टैक्स होता है तो आपको पता है कि उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 105%। पहले ऐसा था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 105% हो तभी हम उसको क्या करते थे, चार्जेबल टू टैक्स करते थे। तो वो 105% वाला अभी हो चुका है 110%। जैसे अपने सेक्शन 50C और 43CA में 105% वाला 110% हो चुका है, वैसे ही यहाँ पे भी 105% वाला हो चुका है 110%। क्लियर फ्रेंड्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो पूरा आप जो पहले सम कैलकुलेट करने में वो आप कंपैरिजन पर्पस के लिए जो आप 105% लेते थे, वो यहाँ पे आपको लेना है 110%। क्लियर। अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये सेक्शन में कैसे चार्जेबिलिटी होती है, यू कैन आस्क मी द वीडियो लेक्चर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसमें मैंने ये आपको टॉपिक गिफ्ट वाला पढ़ाया हो। पर उसमें जो मैंने पढ़ाया होगा तो उसमें अगर 105% मैं आपको बोल रहा हूँ तो उसमें आएगा क्या, 110%। डन फ्रेंड्स, 105% की बजाय हो गया 110%। दैट इज द ओनली अदर अमेंडमेंट। चलो बाकी देख लेते हैं कुछ है या नहीं अदर सोर्सेज में अमेंडमेंट। नहीं, अभी कोई अदर सोर्सेज में अमेंडमेंट नहीं है। बाकी जो अमेंडमेंट है वो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में से अभी हम आप आज के लेक्चर में चलो कवर अप कर ही लेते हैं। अभी लोग उसको इतना एग्जैगरेट कर रहे हैं कि अरे बहुत सारे अमेंडमेंट है, डिडक्शंस में भी बहुत सारे अमेंडमेंट। नो फ्रेंड्स, एक जो ATM जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में, वो है एक सेक्शन ऐड हुई है ATM। तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो बड़ा अमेंडमेंट कवर हो चुका है। अभी जो छोटे बहुत अमेंडमेंट्स है वो मैं कवर अप कर रहा हूँ आपके लिए। तो उसमें क्या है कि सेक्शन 80EE करके जो है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। अगेन मैं पूरी ये सेक्शन अभी नहीं पढ़ाने वाला, इसका भी मेरे पास रेडीमेड वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको ये सेक्शन क्या होता है इसमें ये पढ़ना है तो भी आप मेरे पास से वो वीडियो मांग सकते हो। पर वो सेक्शन में था क्या कि उसमें ऐसा बोल रहे थे कि आपको कुछ इंटरेस्ट आप पे करो, लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उसका आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। उसमें ऐसा था पहले बिफोर अमेंडमेंट कि आपको वो लोन जो है वो 31 मार्च 2020 के पहले सैंक्शन हो गई हो तभी वो तभी वो डिडक्शन 80EE में मिलता था, EE में मिलता था। तो लोन कब ले ली हो 31 मार्च 2020 से पहले। अभी ऐसा आ गया है कि वो 31 मार्च 2021 तक आप लोन लो, हम आपको डिडक्शन देंगे। तो होता क्या है इसमें, होता क्या है कि लोन अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद लो तो अगर आप पुरानी प्रोविजन देखो जो आपके पास बुक्स वगैरह हो तो वो आपको ऐसा बोलेगी कि भाई तो उसमें 80EE का डिडक्शन नहीं मिलता। पर अभी आपकी जो बुक है उसमें आप 31 मार्च 2020 को चेंज कर दो और कर दो वो कंडीशन में 31 मार्च 2021। तो अगर आपने लोन 31 मार्च 2020 के बाद भी ली है पर 31 मार्च 2021 तक ली है, मतलब जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2020-21 वो खत्म होने तक आपने लोन ले ली है, तो उसका जो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन लिया उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आप 80EE में ले सकते हो। दैट इज द ओनली चेंज। क्लियर। सो 31 मार्च 2020 की बदले कर दो 31 मार्च 2021। नेक्स्ट जो डिडक्शन है
नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में। उसमें हम थोड़ा बोल सकते हैं कि चलो अमेंडमेंट है, अपनी जो एक सेक्शन होती है जिसमें मैं जब डोनेशन पढ़ाता हूँ तो मैं 4 कैटेगरी में बच्चों को डिडक्शन समझाता हूँ डोनेशन का। 4 अलग अलग कैटेगरी ऐसी होती है, एक 100% विदाउट लिमिट, एक 100% विथ लिमिट, एक 50% विदाउट लिमिट 50% विथ लिमिट। हम एक्चुअली ऐसे पढ़ते हैं, पहले विदाउट लिमिट 100%, 50%, विथ लिमिट 100%, 50%। तो उसमें जो लिस्ट दिया हुआ है 100% विदाउट लिमिट में बहुत सारा बड़ा लिस्ट है। उस लिस्ट में अब एक चीज़ ऐड हो चुकी है। आप अभी देख रहे हो कि जैसे कोविड सिचुएशन में लोग पीएम केयर्स फंड में बहुत ज़्यादा डोनेशन कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में कि ऐसा आ रहा है कि कोई क्रिकेटर है वगैरह, उसने पीएम केयर फंड में डोनेशन दिया है। बहुत हमारे जैसे लोग जो है वो पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दे रहे हैं कि जो कोविड के कारण कोविड रिलीफ के लिए गवर्नमेंट को काम लगे। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर अपने 2020-21 में पीएम केयर्स फंड जो है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड में डोनेशन दिया हुआ है, तो उसका भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा 100% विदाउट लिमिट। तो आपका जो 100% विदाउट लिमिट वाला जो पॉइंट है उसमें ये एक आप चीज़ ऐड कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर मोड ऑफ पेमेंट। तो इसमें एक छोटा सा चेंज है। आपको ऐसा पढ़ाया जाता था पहले कि अगर आप डोनेशन दे रहे हो अंडर सेक्शन 80G एंड दैट डोनेशन इज बाय वे ऑफ कैश, दैट इज वी कैन से अदर देन बाय अकाउंट पे, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, तो हम ऐसा पढ़ते थे कि अगर 10,000 से वो एक्सीड हो जाए, 10,000 से एक्सीड हो जाए तो वो डोनेशन का हम डिडक्शन आपको अलाउ करते नहीं थे। डोनेशन का डिडक्शन हम आपको अलाउ करते नहीं थे 80G में। तो वो 10,000 वाली प्रोविजन और स्ट्रिक्ट हो गई है। अभी आपको डोनेशन जो है वो देना है, अभी आपको जो डोनेशन देना है कैश में देना है तो दो, बट ओनली अप टू ₹2,000। 2,000 से ज़्यादा आप डोनेशन कैश में नहीं दे सकते। क्लियर फ्रेंड्स? तो वो जो 10,000 वाली लिमिट है वो अभी आ गई है, वो हो गई है 2,000 वाली। यस, तो उसके जैसा सेम ये हो गई सेक्शन 80G का अमेंडमेंट, ये हो गया सेक्शन 80G का अमेंडमेंट। सेम है 80GA, जिसमें भी आप डिडक्शन क्लेम करते हो फॉर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट। आपको पता है कि जो एसएससी बिजनेस प्रोफेशन वाले हैं उन लोगों को ये 80GA में आने की ज़रूरत नहीं है। उनको साइंटिफिक रिसर्च का जो डिडक्शन है वो अपने सेक्शन 35 में ही मिल जाता है, और रूरल डेवलपमेंट एक्ट के लिए जो कोई प्रोग्राम वगैरह किया उसका भी डिडक्शन उनको 35 CCA वगैरह सेक्शन में ही मिल जाता है। पर जो पीजीबीपी वाले एसएससी नहीं है, जिनकी इनकम पीजीबीपी में नहीं आती, वो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन करने जाए तो उनको डिडक्शन कौन सी सेक्शन में मिलता है? जो जिनकी इनकम पीजीबीपी में नहीं आती वो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन करने जाए, वो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन करने जाए, और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन करने जाए तो उनको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80GA में। उसमें भी पहले ऐसा था कि आपको 10,000 से एक्सीडिंग कैश में डिडक्शन नहीं मिलता था, वो भी सेम लाइक 80G अभी हो गया है, एक्सीडिंग 2,000 आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट अपना जो है वो 80M है, वो मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। और अभी एक फाइनल एक जो 80JAA में डिडक्शन है वो चेंज है, वो अपने देख लेते हैं, अमेंडमेंट है। देखो ये 80JAA वाली जो सेक्शन है वो मॉड्यूल में से बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से उसमें दिया हुआ है। पर जब आप ये सेक्शन का क्रक्स देखने जाओगे ना तो उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हम पहली बार पढ़ने के टाइम भी मतलब आप इतना याद नहीं रख सकते। लाइक आप अगर इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट जो 60 मार्क वेटेज आपका रख रहा है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स, उसमें एक डिडक्शन चैप्टर, वो डिडक्शन चैप्टर्स में बहुत सारी सेक्शंस, और उसमें एक सेक्शन उसमें जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपने भी इतना डिटेल में याद नहीं रखा होगा जो अभी अमेंडमेंट आया है। आप उसका मेन प्रोविजन पे ही ध्यान देते होगे तो उसमें बहुत खास चेंज नहीं। अभी चेंज हुआ क्या है तो आपको याद हो तो ऐसा था कि भाई अगर आपको 80JAA में अगर आपको 80JAA में डिडक्शन लेना है तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती थी। उसमें से एक था कि द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन और ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। कोई पुराना बिजनेस स्प्लिट अप करके ही नहीं होना चाहिए, वरना लोग क्या करेंगे, लोग अपने पुराने एम्प्लॉइज को नया एम्प्लॉय दिखाने के लिए एक नया बिजनेस शुरू कर देंगे और बोलेंगे देखो हमने नए एम्प्लॉयज हायर किए तो 80JAA में आप हमें डिडक्शन दे दो। तो
वो डिडक्शन जो है वो ऐसे नहीं मिल पाया ऐसे, तो वो कंडीशन एज इट इज है। नंबर 2 कंडीशन भी एज इट इज है, द बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय एसएससी बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम एनी अदर पर्सन और रिजल्ट ऑफ एनी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। सेम लॉजिक कि अगर कोई रीऑर्गेनाइज करके नया बिजनेस दिखा दे और उसको फिर एम्प्लॉइज, पुराने एम्प्लॉइज ही नए एम्प्लॉइज दिखा दे, यहाँ पे नए एम्प्लॉइज करके 80JJA में डिडक्शन ना ले ले, तो वो कंडीशन थी वो यहाँ एज इट इज रखी है। मतलब वो कंडीशन जो रखी थी कि कोई ऐसा अनड्यू एडवांटेज ना ले ले 80JJA का, तो वो कंडीशन भी एज इट इज है। पर पहले ऐसा था कि द रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम गिविंग सच पर्टिकुलर इन द रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब, ऐसा कुछ सबमिट करना था। वो अभी स्पेसिफिक हो गया कि द रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंट गिविंग प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर हैज टू बी फर्निश्ड बिफोर 30th September of the assessment year being specified date referred to in section 44AB, that is the date 1 month prior to the due date of filing return of income under section 139(1). जो ATM में जैसा था कि एक ATM में आपको डिविडेंड जो डेट के पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता था, तो यहाँ पे एक आ गया है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जो पहले एक रिपोर्ट CA का देना पड़ता था, तो अभी यहाँ आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ नहीं, रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग आप हो सकता है कि रिटर्न ऑफ इनकम बिलेटेड भी फाइल करो, भले आप रिटर्न ऑफ इनकम बिलेटेड फाइल करो, पर जो आपका जो CA के पास से आपको एक जो प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर में एक आपको एक सर्टिफिकेट जैसा कुछ देना है, वो आपको 30th September से पहले दे देना है। दैट इज़ द ओनली कंडीशन, तभी आप 80JJA में डिडक्शन ले सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये एक छोटी सी बात थी। और एक अमेंडमेंट है 80JJA में, वो ऐसा बोल रहा है कि आप जब एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट जो कैलकुलेट करते थे, तो उसमें ऐसा आता था कि एडिशनल एम्प्लॉई कॉस्ट में वही आएगा पेमेंट जो पे किया हो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट। उसमें नहीं आता था वो जो आपने पे किया हो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो मतलब आप कैश में अगर एम्प्लॉय को पे करते थे तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता था। अगर आप कैश में एम्प्लॉय को पे करते थे या बैरर चेक से पे करते थे तो उसका आपको डिडक्शन, उसका 30% का डिडक्शन आपको 80JJA में नहीं मिलता था। पर यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि वो तो प्रोविजंस एज इट इज़ ही है, उसमें ऐसा लिखा था कि आपको अगर डिडक्शन लेना है तो आपको कैसे पेमेंट करना है, आपको अगर डिडक्शन लेना है तो आपको पेमेंट करना है ओनली बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और थ्रू बैंक अकाउंट। अभी ऐसा आ गया है कि अभी उन्होंने कुछ मोड्स प्रिस्क्राइब किए हैं कि वो भी करोगे तो चलेगा। अभी देखो वो जो प्रिस्क्राइब मोड है वो वैसे भी कैश या बैरर चेक जैसे कुछ नहीं है, तो वो वैसे भी डिडक्शन मिलना ही चाहिए था, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। इसको अपने बहुत बड़ा अमेंडमेंट नहीं बता सकते, पर ठीक है वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT या भीम UPI, उसको भीम आधार पे या ऐसे कोई भी मोड से अगर आप पेमेंट करते हो तो उसका भी डिडक्शन आपको 80JJA में मिल जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हुआ डिडक्शंस, अमेंडमेंट्स अप टू योर डिडक्शंस, अमेंडमेंट्स अप टू योर डिडक्शन। इसके बाद के जो अमेंडमेंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर अप कर लेंगे फ्रेंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड होप आपको समझ में भी आ गया। एग्ज़ाम के लिए आपको काम में लगेगा ही, एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएगा भी। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम दूसरे अमेंडमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।